Assalamualaikum everyone. So today we are going to discuss on evaluation in education. तो इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि evaluation है क्या. What is the definition of evaluation? So evaluation तीन phases में complete होता है, right? So as per the definition of evaluation, it is a process of, let me have the spotlight. It is a process of collecting, analyzing and interpreting the students' responses. Evaluation हम कब करते हैं? जब हम students के test conduct करते हैं. Test conduct करने के बाद यानी कि हम उनके collecting के phase पर हैं. किसके? Evaluation के. Then जब हम when we collect the students' responses, when we conduct the test from the students, the teachers check the students' responses, check their papers, and means that they are at the level or at the phase of analyzing phase. And after the checking of the or assessment of the students' papers, then we go with the third phase of evaluation, that is interpreting, right? So interpreting is what कि जब हमारे students के results की announcement होती है. तो ये पूरा प्रोसेस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ टेस्ट टू द अनाउंसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट, इस पूरे प्रोसेस को हम इवेल्युएशन कहते हैं. सो देयर आर थ्री मेन phases of evaluation, right? Then we have the importance of evaluation. Why does evaluation is important for any institution, for students, for teacher, for any educational stakeholder? क्या आखिर ज़रूरत क्या है? Evaluation हम क्यों करते हैं? So first importance of evaluation is the evidence for fair decision. It provides you the evidence of what learners know from the content you have delivered to the students, or what they do not know, और what do they can do, right? अगर आप कोई theoretical information provide कर रहे हैं, so how much the information student get it, और अगर आप कोई practical उनको skills सिखा रहे हैं, so how much students get the practical skills, you will get to know after the evaluating them, right? So it has well defined criteria, thus brings fairness and transparency. जब हम इवेल्यूशन करते हैं तो हम स्टूडेंट्स को एक क्राइटेरिया बता देते हैं कि बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया योर इवेल्यूशन विल बी कंडक्टेड. सो उन्हीं के बेसिस पे उनको इवेल्यूएट किया जाता है, उनकी असेसमेंट शीट्स रेडी की जाती हैं. और इसी तरह से ये हेल्प करता है कि इसमें कि ये बायसनेस को कम कर देता है. जब इवेल्यूएशन का क्राइटेरिया वेल डिफाइंड है और इवेल्यूएशन को रिगरसली किया जा रहा है कंडक्ट, तो उसमें जो बायसनेस है, बायसनेस फ्रॉम जेंडर बायस हो गया या किसी भी तरह का बायस हो गया उससे, या कोई फेवरेटिज्म है टीचर दे रहा है अपने स्टूडेंट को, तो वो ख़त्म हो जाती है. और इसी तरह से हमारे जो एजुकेशनल के जो ट्रस्ट हैं वो बिल्ड होते हैं, राइट? देन वी हैव क्लियर अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. हमने लेसन प्लान वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे हर चीज से, हर स्टेप ऑफ लेसन प्लान से अलाइंड होते हैं. तो इसी तरह जब हमारा लेसन प्लान में लास्ट जो स्टेप होता है वो असेसमेंट का होता है ना, जिसमें हम इवेल्युएशन कर रहे होते हैं. सो कीपिंग दैट पॉइंट in the mind, evaluation provides a clear alignment of the objective. It clarifies the learning objectives by showing alignment between curriculum objective, instruction, and assessment tasks. Whatever the content and however the content has been delivered to the students, the assessment will be conducted from that perspective. By keeping in mind the cognitive domain of students, by the cognition level of the students, the content will be delivered. So the same as के जिस तरह से content deliver किया गया है, जितना deep में content deliver किया गया है या lecture deliver किया गया है, उतने ही डीप में या उतने ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर उनकी असेसमेंट टास्किंग की जाएगी, असेसमेंट टेक्निक्स को फॉलो किया जाएगा. Clear alignment reduces mismatch and makes results more meaningful for the stakeholders. Definitely, if you have aligned your objective with the assessment techniques, so definitely you will get the more good results from your students, right? Then we have accountability through outcomes. Now, accountability कैसे? Evaluation strengthens the accountability by documenting program and learners outcome.
It helps schools justify resources, demonstrate effectiveness, and track progress over the time. Whatever the teaching strategies has been used in the class, so students उसी तरह से उसको learn करेंगे. If good practices have been done with the students, so definitely the outcome of the students or learners will be positive. अगर जो है वो teaching strategy को बेहतर नहीं implement किया गया है, या जो स्टूडेंट्स की कॉग्निशन लेवल को माइंड में नहीं रखा गया, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड को माइंड में नहीं रखा गया और उनके लेवल से ज़्यादा आप अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका प्रोग्राम है या स्टूडेंट्स आउटकम है वो आपको जीरो मिल सकता है या नेगेटिव में जा सकता है, बट बेहतर नहीं मिल सकता. लेकिन जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के एजुकेशनल बैकग्राउंड को माइंड में रखा जाए, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल को माइंड में रखा जाए, क्योंकि हमारी क्लास में स्लो लर्नर्स भी होते हैं और फास्ट लर्नर्स भी होते हैं, देन मेडिकल लर्नर्स भी होते हैं. तो ऑल थ्री टाइप ऑफ लर्नर्स को माइंड में रखते हुए आपने अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होता है. इससे क्या होता है कि हमारा जो फिर जब हम इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएशन करते वक्त में भी हमें ये तीनों लर्नर्स को माइंड में रखना होता है कि जो भी हम क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, असेसमेंट दे रहे हैं स्टूडेंट्स की, असेसमेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए, वो भी हमारी अलाइन होनी चाहिए बेस्ड ऑन द लेक्चर वी हैव डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स, राइट. इसी तरह से हमारे जो आउटकम है वो फिर अच्छी आउटकम आएगा, पॉजिटिव लर्नर आउटकम आएगा. Then the second, the last importance of evaluation, not the last, but the another importance of evaluation is it provides a feedback loop for improvement. सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो हमारा एवेल्यूशन का वो ये है कि आप इसमें फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं. अच्छा, फीडबैक जो है वो फ्रॉम स्टूडेंट्स भी प्रोवाइड किया जा सकता है टू द टीचर्स, और फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट्स भी प्रोवाइड किया जा सकता है. मींस फीडबैक जो है वो एक इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, इम्प्रूवमेंट फॉर द सिस्टम, इम्प्रूवमेंट फॉर द टीचिंग टीचर्स, और इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट. सो अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो इवेल्युएशन हम स्टूडेंट्स की कंडक्ट कर रहे हैं. So in evaluation, if teacher giving a proper and comprehensive feedback to the student, definitely it will bring the improvement among the students, right? So इस तरह से हम कह सकते हैं कि evaluation एक fruitful साबित होती है for the improvement of students, right? Then we have the types of evaluation. अच्छा, before starting the types of evaluation, I will let you know that in some material, in some articles, there is written that there are two types of evaluation, जिसमें वो evaluation by purpose की बात करते हैं and then evaluation by formation की बात करते हैं. अच्छा, इवेल्युएशन बाय फॉर्मेशन हम सिंपली मीडिया ऑफ इवेल्युएशन को कह सकते हैं, जिसमें हम वो टेक्निक यूज करते हैं कि जिससे हम स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करें, जैसे कि ओरली हम उनको इवेल्युएट कर रहे हैं या प्रैक्टिकली उनको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, या जो है हम उनसे रिटन फॉर्मेट में इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट. देन फिर आती है हमारी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन बाय फॉर्मेशन, बाय पर्पस, जिसमें हम ये चारों टाइप्स डिस्कस करते हैं कि जब भी हम इवेल्युएशन करते हैं तो इवेल्युएशन करने से पहले कोई ना कोई खास मकसद होता है, रीजन होता है कि व्हाई वी आर इवेल्युएटिंग एनी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल, राइट. सो अगर हम स्कूल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन. इसको हम इवेल्युएशन बाय पर्पस भी कह सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव असेसमेंट. ये हमारी थ्रू आउट द लर्निंग हो रही होती है. इसमें जो पॉजिटिव बात है वो है कि हम इसमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी कंसिस्टेंट लर्निंग हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके. इसके एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं, क्विजेस हो सकते हैं, क्लासरूम क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, पेयर रिव्यू हो सकता है, एग्जिट टिकट्स हो सकता है. अच्छा, एग्जिट टिकट्स जो है वो कुछ काइंड ऑफ एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करवाकर और उनको जो है क्वेश्चन आंसरिंग करके उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है. देन वी हैव द सबमिटिव असेसमेंट, जिसमें हम फाइनल असेसमेंट देते हैं, जिसको आप फाइनल एग्जाम भी कह सकते हैं. इसमें ओवरऑल अचीवमेंट, ओवरऑल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स चेक किया जाता है. एक एग्जाम्पल है फाइनल एग्जाम्स हो गया, एंड ऑफ टर्म्स हो गए, या फिर प्रोजेक्ट्स हो गए, या फाइनल प्रोजेक्ट्स हो गए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का नाम दे देते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स में, कहीं पर फाइनल परफॉर्मेंस टास्क का नाम भी दिया जाता है.
हमारे कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फाइनल एग्जाम का नाम दिया जाता है। देन वी हैव द थर्ड वन इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। It occurs or it happens earlier when difficulties appear, maps learners current understanding। अच्छा, ये उस वक्त में होती है जब हम स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की कोई लर्निंग डिसेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इफ यू हैव वॉच अ वीडियो तारे जमी पर इन विच दैट चाइल्ड whenever he tries to read the content, reads the book, he could not read the book. Why? Because उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो स्कैटर्ड और डांसिंग लेटर्स लगने लगते हैं, एंड ही कैन नॉट रीड दैट कंटेंट और द बुक। सो उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारी असेसमेंट होती है, टेस्ट होते हैं, वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के टाइप्स में आ जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं प्री टेस्ट, स्किल इन्वेंट्रीज, कॉन्सेप्ट चेक्स, रीडिंग डायग्नोस्टिक्स। राइट, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन वी हैव प्लेसमेंट एंड सिलेक्शन इवेल्युएशन। अच्छा, इसमें क्या है कि जब आप कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो आप जॉब हो या कोई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, जब आपको कोई एडमिशन चाहिए होता है या कोई एंट्री चाहिए होती है, देन आपसे जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उस तरह के इवेल्युएशन को हम प्लेसमेंट इवेल्युएशन या प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। इसका सेकेंड नेम सिलेक्शन असेसमेंट भी कहलाया जा सकता है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल जो है वो ये है एंट्री टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया या आईक्यू टेस्ट। राइट, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन है बाय पर्पस। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो, मतलब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टाइप्स, आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल फैसिलिटेट यू इन द कमेंट्स। राइट, सो नेक्स्ट वी हैव द पर्पस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। जो हमने पीछे टाइप्स पढ़ी हैं उनके मकसद क्या है वो तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट इन जस्ट अ शॉर्ट रिव्यू मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मेटिव हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूवमेंट बनाया जाता, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हम प्रैक्टिसेस वगैरह करवाते हैं, एरर ट्रायल वाला जो प्रोसेस है वो करवा रहे होते हैं। देन समेटिव असेसमेंट जो है वो हमारी फाइनल असेसमेंट होती है, जिसमें हम स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग कर रहे होते हैं और उनको प्रमोट करते हैं फॉर द नेक्स्ट क्लास और फॉर द नेक्स्ट लेवल। डायग्नोस्टिक लेवल, हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो हम स्टूडेंट्स की या एक इंडिविजुअल की कोई भी स्ट्रेंथ या वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। और प्लेसमेंट या सिलेक्शन जो है वो हम किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, ट्रैक पर या लेवल पर जाने के लिए या कोई एडमिशन लेने के लिए हम प्लेसमेंट को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं। राइट, देन डिजाइनिंग असेसमेंट मीडिया फॉर्मेट्स। अच्छा, जो मैंने अभी प्रीवियसली बात की थी कि कुछ जगहों पर दो टाइप्स की इवेल्युएशन की बात हो रही है, जिसमें इवेल्युएशन बाय फॉर्मेशन की बात होती है, यानी कि जिसमें हम स्टूडेंट्स की असेसमेंट करते हैं कि कौन से फॉर्मेट के थ्रू हम असेसमेंट कर रहे हैं, इधर प्रैक्टिकली कर रहे हैं, इधर ओरली कर रहे हैं, या फिर जो उनको वो रिटन फॉर्मेट में